Welcome students. Today we are going to discuss an important topic, that is pluralism in political science. We will discuss its meaning, importance and other details in today's lecture. But before discussing it in detail, let's discuss a bit its history. Pluralist philosophy is a product of the conditions of modern society and life, especially of the industrially developed countries of the West. And It first began at the end of 19th century and began to flourish right after the First World War, and then then continue. And There were certain factors which contributed largely as a condition to led to the growth of this theory of sovereignty, like the function of the state and the functions of the other forces related to the power and the functions of the sovereign, exclusive authority of the state and supreme authority of the state, or supreme authority of the state and related things. So let's discuss its meaning, importance and other details without going its discussing its history or any other related things. Pluralism is a powerful protest against the monastic theory of sovereignty, which I have discussed, which endows a state with supreme and unlimited power. Harold Lasky, Figs, Barker, Curl, Lindsay, Doge, McIver, and others are the exponent of this important theory, the pluralist theory, pluralism. According to pluralist, sovereignty, what is the यानी sovereignty यानी इक़्तिदार आला कहाँ है, किधर फॉल करती है, क्या है? तो it resides not with the state, but it resides with many other institutions. इसी चीज को हम आगे लेकर जाएंगे और यही यानी हम कह सकते हैं कि क्रक्स है सारी थ्योरी का, कि सॉवरेनिटी एक के पास नहीं है, स्टेट के पास नहीं है, बल्कि स्टेट जैसे स्टेट के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूशंस के पास है, बट इट रिजाइड्स विद मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस. ठीक है जी. तो देयर एग्जिस्ट मैनी सोशल, अब रियासत के अंदर क्या है, बहुत से सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हर सोसाइटी में होते हैं. और ये इंस्टीट्यूशंस स्टेट से भी पहले के हैं. ठीक है ना, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो रियासत को हम बना रहे हैं, मोनास्टिक बना रहे हैं, लेकिन प्लूरलिस्ट कहते हैं कि प्लूरलिज्म यानी मिसाल के तौर पर फैमिली और चर्च वो स्टेट से भी पहले के हैं. फैमिली, चर्च, जैसे मैंने आप किसी एक लेक्चर में देखे ना, तो मैंने वहाँ रिलीजन और मैजिक और इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हो. सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट नाउ दैट द स्टेट इज नॉट अ सिंगल वन. इट that sovereignty not resides not only with the state but resides with many other related institutions. ठीक है जी. According to pluralists, the state is not only the supreme institution. On the contrary, like other institutions, the state is also one of the institutions of the society. State एक institution है society का. So there, the state does not reserve the authority to exercise sovereignty according to his will. Sovereignty is not his private property. स्टेट की नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट, सॉवरेनिटी इज नॉट इंडिविजिबल एंड एक्सक्लूसिव. वहां पर हमने कहा था कि सॉवरेनिटी इंडिविजिबल है और एक्सक्लूसिव है और अनडिवाइडेबल है और इस तरह की हमने चीजें की. सो वन द कंट्रेरी, इट इज अ मल्टीप्लिसिटी in its essence and manifestation. It is divisible into two parts uh, and should be divided. कहता है कि दो हिस्सों में है और ये तकसीम होने वाली है. आगे चलते हैं. इसके सपोर्टर्स कौन कौन से? ओटो वॉन ग्रीक, फिग्स, कर्ल, लिंडसे, अर्न बार्कर, क्रेबे, डोगे, लास्की, कॉबर, जिम, डरकेम, ये सारे सपोर्टर्स हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी के. मिसाल के तौर पर ग्राइके लिखता है कि द स्टेट शुड एक्सेप्ट द कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू that permanent associations have rights and duties as groups, whether or not the state has accepted them as corporations.
ठीक है जी। लास्की कहता है कि स्टेट इज ओनली वन अमंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशंस एंड एज कंपेयर्ड विद दैट हैज नो सुपीरियर क्लेम्स टू द इंडिविजुअल एलिगेंस। यानी रियासत उनमें से, उन एसोसिएशन में से है। सो फर्दर दीज एसोसिएशंस आर नॉट लेस सॉवरेन देन द स्टेट इटसेल्फ। यानी ये नहीं है कि स्टेट बड़ा इदारा है और उसके साथ नीचे छोटी। ये कहता है कि ये उन्हीं की तरह का एक वो जिस तरह वो सॉवरेन है इसी तरह ये भी सॉवरेन है। यानी ये उनसे कहीं कमतर नहीं है। बिकॉज सोसाइटी इज फेडरल वन, द अथॉरिटी मस्ट आल्सो बी फेडरल फेडरल वन। आगे चलते हैं। क्रेबे कहता है कि that the notion of sovereignty must expunged from political theory. Higgs has also admitted the importance of associations. He says human society is not a heap of individuals related only through the state but an ascending hierarchy of groups. Or the traditional theory of sovereignty is a venerable superstition. MacIver has also pointed out in his famous book, The Modern State, that स्टेट इज वन एसोसिएशन अमंग मैनी एसोसिएशंस विद इन द कम्युनिटी। यानी ये बात आप याद रख लें कि माइक एवर ने कहा है कि स्टेट इज वन एसोसिएशन अमंग मैनी एसोसिएशन विद इन द कम्युनिटी। यानी उनमें से एक एक उन एसोसिएशन में से एक। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ वो सॉवरेनिटी को डिवाइड भी कर रहा है और सबको इक्वल दे रहा है, प्लूरलिस्ट। डेवलपमेंट ऑफ द प्लूरलिस्टिक थ्योरी, जो मैंने शुरू में बात की थी लेकिन उसको थोड़ा सा एनहांस करूंगा कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी originated in the writing of Otto von Guericke. The germ of pluralism is to be found, says Professor Andy Gilchrist, in the work of the German jurist von Guericke, 1844-1921, whose monumental work on the legal theory of corporation, part of which was translated with a sympathetic introduction by the English jurist Maitland, in his political theories of Middle Ages 1900, gave an impetus to the idea of corporation as legal entities. Corporation को उसने legal entities इसने दिया मिडिल एजेस के उस अरसे में, और विद द लाइफ ऑफ देयर ओन इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट के बड़ी वो अपनी एक वो उनकी पोजीशन है। मिडिल एजेस में क्या होता है? The organization of the state in Europe was loose and the church, ठीक है नहीं, ये बात क्लियर है कि the organization of the state in Europe was loose and the church की authority बहुत डिक्लाइन कर जाती है, और vocational associations और and guilds played their significant role in society। और 16 और 17th century में national sentiment gathered force in Europe and as a consequence national states emerge या nation states emerge हो जाती हैं। उनकी एक अथॉरिटी आ जाती है और वो तमाम उसमें वो इदारे अपनी अहमियत रखते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है आखिरी उसमें कि द अथॉरिटी ऑफ द रूलर वाज कन्फाइंड, और कन्फाइंड होगी। द कैबिनेट बिकेम मोर पावरफुल। अब कैबिनेट, अब देखें इख्तियार जो है वो क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। बट द स्टेट रिमेन सॉवरन एंड सुप्रीम, लेकिन स्टेट फिर भी सॉवरन है, सुप्रीम इदारा समझा जा रहा है। With the advent of the welfare state, there came a rapid increase in the functions of the state, and there remained no sphere of life with which the state did not interfere. यानी with the advent of the welfare state जब आती है तो there came a rapid increase in the function of state का काम बढ़ जाता है, and there remained no sphere of life with which the state did not interfere. The sovereign and the supreme state also faced revolt and reaction। लोगों की तरफ से, इदारों की तरफ से आता है, और this reaction against the sovereign and supreme state resulted in the throne of as the dawn of the pluralism। यानी एक तरह से रिवोल्ट आया और अख्तियार को आप चैलेंज कर रहे हैं, और अख्तियार फिर डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और बहुत सौ को मिल रहा है। ठीक है जी, कन्फाइंड नहीं रहा है अब, और कैबिनेट बनती है, फिर इख्तियार जो है वो क्या हो रहा है, एक तरह से प्लूरलिस्ट कि हाँ ये चीज़ डेवलप हुई, डेमोक्रेसी ने बढ़ाया इसको। अच्छा जी, द ग्रुप एंड द स्टेट, द प्लूरलिस्ट थीसिस वाज बेस्ड ऑन दीज प्रोपोजिशन। यानी प्लूरलिस्ट का जो थीसिस है वो इन चीज़ों पर करता है कि सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ रीजनेबली independent religious, यानी cultural, educational, professional and economic groups are association। सोसाइटी में ग्रेट वैरायटी ऑफ ये इंडिपेंडेंट इदारे हैं जो कि रिलीजियस भी हैं, कल्चरल भी हैं, एजुकेशनल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं,
ये सारे के सारे हैं, यानी ये बेस करता है। पहली बात इनका ग्राउंड, दूसरी बात कि इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज ट्रू सेल्फ only in these small groups or associations. इंडिविजुअल की जो सॉवरेनिटी या रियलाइजेशन जो है वो इन इदारों में, इन ग्रुप्स में है। और फिर the groups are more representative of the individual interest than the all powerful and centralized state. The groups are more, यानी अब ग्रुपों को रियासत की बजाय अगर उन इदारों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो ज़्यादा वहाँ पर वो आपको उनके इंटरेस्ट भी नज़र आते हैं और ज़्यादा आपको नुमायाँ नज़र आते हैं और वहाँ पर वो पावरफुल भी नज़र आते हैं और सेंट्रलाइज्ड भी नज़र आते हैं। इसी तरह से the unprecedentedness of the state is still greater as its public or administrative bodies are dispersed geographically over the country. और ये क्या है? These associations are not dependent upon the state for their existence. Not dependent upon the, यानी ये रियासतें ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट हो तो वो करेंगी। इन लोगों के नज़दीक ये यानी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? उनके अपनी एग्जिस्टेंस के एतबार से। और फिर एसोसिएशंस आर वॉलंटरी होती हैं because their members can be members of other groups or associations while the members of the state is compulsory. यानी वो वॉलंटरी हैं कि वो ज्वाइन करते हैं लोग उनको और वो बनती हैं, जबकि स्टेट में आप कंपल्सरी उसका वो मेंबर होते हैं। सो पब्लिक पॉलिसी इज नॉट मेड बाय द स्टेट बट बाय फ्री इंटरेक्शन ऑफ दीज एसोसिएशन, ठीक है जी। और स्टेट कैन एक्ट इफेक्टिवली ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय दीज ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, यानी स्टेट को भी मजबूत होती है इन्हीं की वजह से। स्टेट को सहारा मिलता है इन्हीं एसोसिएशन की वजह से, स्टेट का स्टेट होना भी इन्हीं की वजह से। सो दीज हैव देयर ओन पोजीशंस, ठीक है जी। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर वेयर वी हैव डिस्कस्ड pluralism, bit of its history, and then the group and the state in the last. So thank you very much.